یہ کیا بدتمیزی ہے سمیت، تو میرے کمرے تک بھی پہنچ گئے اور میرے کمرے کا لاک بھی توڑ ڈالا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ یہاں بھی آ گئے ہو تم مجھے بدنام کرنے کا؟ خدا کا واسطہ ہے سمیر، زرتش نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، اپنی غلطیوں کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں، میں ہار مانتی ہوں، پلیز تم چلے جاؤ یہاں سے، میرا مزید تماشا نہ بناؤ۔ زرتش آنسو بہاتے ہوئے بول رہی تھی، اپنی عزت کی خاطر وہ اپنی انا کو قربان کر رہی تھی۔ اپنی عزت اسے اپنی انا سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی عزت پر کوئی آن جائے۔ اگر اس کے بھائیوں تک ان باتوں کی خبر پہنچی تو بابیاں تو زرتش کو پہلے ہی بلا بلا کہیں گی۔ وہ تو پہلے ہی زرتش کے پڑھنے اور ہاسٹل میں رہنے کے خلاف تھی۔ جب ان کی چالاکیاں وہاں نہیں چلی تو انہوں نے بھائیوں کے باسط کا ایڈمیشن بھی اسی یونیورسٹی میں کروا دیا تاکہ وہ زرتش پر نظر رکھ سکے۔ تم یہ رونا بند کرو پلیز، مجھ سے یہ رونا دھونا آنسو بہانا نہیں دیکھا جاتا۔ سمیر آگے بڑھ کر زرتش کے اس کا سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ایک ہاتھ سے نیچے کرتے ہوئے بولا، زرتش ایک بات میری کان کھول کے سن لو، آج تم جیسا تم مجھے سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں ہوش کا شکاری نہیں ہوں، میں آوارہ ہوں، گنڈا ہوں، بدتمیز بھی ہوں، مگر میں بد چلن نہیں ہوں۔ تم اپنے دل میں میرے لیے ایسا کوئی گمان پیدا مت کرو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ زرتش کی کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے بولا۔ سمیر کی گرفت بہت سخت تھی۔ زرتش نے سمیر کے ہاتھ ہٹانا چاہے مگر نہیں ہٹا پائی۔ سمیر کی گرفت بہت سخت تھی۔ زرتش نے سمیر کے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر نہیں ہٹا پائی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، بہت نفرت۔ اس کے کاندھے سے ہاتھ ہٹاتے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرتش بیڈ پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ سمیر کے جاتے ہی نیلم اور نازیہ زرتش کے پاس آ بیٹھی اور اسے چپ کروانے لگی۔ زرتش اب بس بھی کرو یہ رونا، بتاؤ صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ سمیر یہاں کیوں آیا تھا؟ ہم تو سمجھی تھے یہ سدھر چکا ہے مگر یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، بس دکھاوے کے لیے حلیہ بدلا ہے اس نے اپنا، کرتوت تو ابھی بھی ویسے وہی ہے اس کے، گنڈے کہیں کا۔ نیلم اور نازیہ دونوں اپنے دل کے غبار نکال رہی تھی۔ نازیہ تو ویسے بھی اپنے فون ٹوٹنے کا غم ستایا جا رہا تھا۔ زرتش نے لائبریری میں ہونے والا واقعہ دونوں کو سنا دیا۔ وہ اٹھ کر اپنی الماری کی طرف بڑھ گئی، سوٹ کیس اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ زرتش کیا کر رہی ہو تم؟ نیلم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میں اپنا اب یہاں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی، جو کمرہ تک پہنچ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ میری عزت پر کوئی آنچ آئے۔ میں سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتی ہوں، بس یہی ایک حل ہے اس مسئلے کا۔ میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے زرتش، اس طرح تو سمجھے گا کہ تم اس سے ڈر کر بھاگ گئی ہو، اس کی دہشت مزید بڑھ جائے گی۔ یہ تو کوئی حل نہ ہوا نا؟ نازیہ غصے سے زرتش کی طرف بڑھی۔ فی الحال میرے پاس یہی حل ہے، بعد میں کیا کرنا ہے بعد میں سوچوں گی، ابھی مجھے گھر جانا ہے، میں واپس نہیں آنا چاہتی، تم سب سے رابطہ میں رہوں گی، جب دل چاہے گا تم تینوں مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ نازیہ کا تم مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ دو گی یا پھر میں ٹیکسی منگوا لوں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو زرتش، تم پاگل ہو گئی ہو؟ کوئی سوچنے کیا کرنے جا رہی ہو؟ تمہاری بھابیاں تو پہلے ہی یہی چاہتی ہیں کہ تم پڑھائی چھوڑ کر واپس آ جاؤ، ان کے بچے سنبھال لیں، اس غلامی میں کم از کم عزت تو محفوظ رہے گی۔ زرتش اپنا بیگ اٹھا کر کندھے سے لٹکائے اور سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیلم اور نازیہ تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی۔ زرتش رک جاؤ پلیز، ایسا مت کرو، وہ دونوں آوازیں دیتی رہ گئی مگر زرتش نے ان کی ایک نہ سنی اور آنسو بہاتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، رکو تو صحیح، میں گاڑی لے کر آتی ہوں۔ نازیہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامے راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ زرتش رک گئی۔ نازیہ گاڑی لے کر آئی اور تینوں گاڑی میں بیٹھ کر بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہو گئی۔ زرتش مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک ایسا بے حس انسان سے پالا پڑے گا اس کا، پڑھائی چھوڑ کر یوں جانا پڑے گا اس کو، کہ کتنی مشکلوں سے اجازت ملی تھی اسے بڑھنے کی، بھابھیوں کی ہزاروں منتیں کرنی پڑی۔ آج اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو بھابھیوں کی غلامی نہ کرنی پڑتی مجھے۔ زرتش کو اپنے بابا یاد آنے لگے، بچپن سے اپنے بابا کی لاڈلی رہی تھی، بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے بابا اس سے۔ 2 سال پہلے ان کی اچانک موت نے زرتش کو توڑ کر رکھ دیا۔ ماں کا سایہ تو بچپن میں ہی زرتش کے سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت تو 4 سال کی تھی جب اس کی ماں سو کر اٹھی ہی نہیں، ان کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھائیوں اور بابا نے یہی مل کر انہیں پالا تھا۔ شادی کے بعد
बस अपनी अपनी बीवियों के होकर रह गए थे। जब तक बाबा जिंदा रहे जरदश की जिंदगी अच्छी गुजरती रही, मगर जैसे ही इसके बाबा इस दुनिया से रुखसत हुए, चंद माह बाद ही बाबियों के की सच्चाई सामने आने लगी, अपनी असली रूप दिखाने लगी वो दोनों बहनें। जरदश को बात बात पर मुफ्त खोरी का ताना दिया जाता, इनकी गुलामी करती और अलग, मगर जरदश ने कभी इनको पलट कर जवाब नहीं दिया। वो दोनों लाख नफरत कर लें जरदश से, मगर जरदश ने हमेशा इन दोनों को अपनी बड़ी भाभियों से बढ़कर अपनी माँ का दर्जा दिया। वो बड़े लोग कहते हैं ना, बड़ी भाभी माँ जैसी होती है। बस जरदश इसी बात को मानते हुए आगे बढ़ रही थी। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, फिर जरदश के सर पर पढ़ाई का जुनून सवार हो गया। नीलम ने यहाँ एडमिशन लिया तो इसने जरदश को भी अपने साथ चलने की ऑफर की। फिर जरदश ने भाइयों की मिन्नतें शुरू कर दी। आखिरकार वो दोनों मान ही गए, मगर साथ ही उन्होंने बासत के साथ जाने का शर्त भी रख दी। जरदश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह बासत को भी अपना बड़ा भाई ही समझती थी, मगर इस बात से अनजान थी कि बासत इससे शादी करना चाहता है। नाजिया बस स्टैंड के करीब गाड़ी रोक दी। जरदश प्लीज एक बार अच्छी तरह सोच लो, ये तुम ठीक नहीं कर रही। नीलम ने आखिरी कोशिश की इसको समझाने की, मगर जरदश इसकी बात नहीं सुने बगैर ही गाड़ी से बाहर निकल कर टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गई। सामने खड़े शख्स को देखकर जरदश के पैरों तले जैसे जमीन सड़ेगी। जरदश पहले घबरा गई, फिर डाई से टिकट का काउंटर की तरफ बढ़ी। समीर काउंटर के साथ वाली दीवार के साथ टेक लगाए, दोनों बाजू सीने पर फोल्ड किए, गुस्सीली नजरों से लब बीजे खड़ा जरदश को घूर रहा था। जरदश जैसे ही टिकट उठाने लगी, समीर आगे बढ़कर टिकट पर हाथ रखकर नफी में सर हिला दिया। जरदश का हाथ थामते हुए वहां से आगे बढ़ गया। जरदश अपना हाथ छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करने लगी, मगर समीर ने इसका हाथ नहीं छोड़ा। जब नीलम और नाजिया की नजर सामने से आते समीर और जरदश पड़ी तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। ले जी, हो गया काम। दोनों हाथ पर हाथ मारा। नाजिया ने अपना सिम कार्ड निकाल कर नीलम के फोन में डाला और सारा गुस्सा साइड पर रखते हुए समीर को और जरदश के जाने की खबर मैसेज कर दी, और हिसाब तवक्को समीर इनसे पहले ही वहां पहुंच गया। इन दोनों के पास बस एक यही तरीका था जरदश को रोकने का। नीलम ये मैसेज लिखा समीर को कि जरदश हमारी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रही है, प्लीज समीर इसको रोक लो किसी तरह। मैं बस स्टैंड के एड्रेस सेंड कर रही हूँ, प्लीज जल्दी यहाँ पहुँच जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। समीर का के मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही समीर ने मैसेज पढ़ा वो सर थाम कर रह गया। वो तेजी से जीप स्टार्ट करते हुए हॉस्टल से बाहर निकल पड़ा, बस स्टैंड के लिए। मैसेज का जवाब देने के लिए वक्त नहीं था इसके पास। चलें फिर हम दोनों हॉस्टल। नाजिया ना मुस्कुराते हुए बोली। हाँ हाँ जरूर, नीलम भी मुस्कुराते हुए बोली। नाजिया ने गाड़ी स्टार्ट की और वापस होटल की तरफ मोड़ दी। समीर, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। जरदश हाथ अभी तक समीर की गिरफ्त में था। बैठो जीप में। वो जरदश का हाथ छोड़ते हुए बोला। मैं क्यों बैठूं तुम्हारी जीप में, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। जरदश अपना हाथ दबाते हुए बोले, जो समीर के मजबूत से थामने पर अब दर्द हो रहा था। जरदश, तंग मत करो मुझे, चुपचाप जीप में बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। समीर जरदश की तरफ थोड़ा करीब होते हुए बोला। जरदश डर के 2 कदम पीछे हटी, आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। समीर को अपनी गलती पर पछता हुआ अच्छा ठीक है यार, मैं नहीं आता तुम्हारे पास, मैं दूर हो जाता हूँ, तुम रोना तो बंद कर दो यार। एक तो तुम लड़कियों को रोने के सिवा और कोई काम नहीं आता, जब देखो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने लगती हो। तुम बैठो जीप में, तुम्हारे हॉस्टल ड्राइव कर देता हूँ। नहीं, मुझे हॉस्टल वापस नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। नाजिया और नीलम मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे जाने दो। जरदश ने जीप की दूसरी साइड से निकलना चाहा, मगर समीर इसके सामने आ रुका। दोनों हॉस्टल में ही मिल जाएंगी तुम्हें, अभी तुम चलो मेरे साथ, अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे हैं। और ये आंसू बहाना भी बंद कर दो, अब खुद ही साफ कर लो अपने आंसू, या फिर मैं साफ कर दूं। समीर ने हाथ आगे बढ़ाया। जरदश डर के पीछे हटी। मैं खुद ही कर लूंगी। वेरी गुड, समीर हंसी दबाते हुए बोला। जरदश चुपचाप जीप में बैठ गई। समीर भी मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जीप स्टार्ट कर दी। जरदश मुंह दूसरी तरफ किए बैठी रही। जरदश, आई एम सॉरी। जरदश ने झुक कर समीर की तरफ देखा। किस बात के लिए सॉरी दी डान समीर गुजर? जरदश एक एक लफ्ज छिपाते हुए बोली। समीर के होंठों में मुस्कुराहट फैल गई। बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हारे होंठों पर मेरा नाम जरदश खान, कितना अच्छा लगा ना जब जरदश खान से तुम मिसेस डी डॉन समीर गुजर बन जाओगी। जरदश ने झुक कर समीर की तरफ देखा। सब कुछ मजाक लगता है ना तुम्हें, लड़कियों का जज्बात से खेलना, तुम इस तरह से अपनी मर्दानगी जाहिर करते हो। समीर जब सड़क के किनारे रोक दी। नहीं जरदश, तुम गलत हो, मैं लड़कियों के जज्बात से नहीं खेलता, इनकी बर्दाश्त से ज्यादा मजाक नहीं करता मैं इनसे, मगर तुम इन लड़कियों में से नहीं हो, तुम अलग हो, तुम्हारे जज्बात को समझना चाहता हूँ मैं।
تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہوں میں مردانگی پر یہ ہے کہ میں تمہارا ہاتھ زندگی بھر کے لیے تھام لوں۔ رہنا یہ تو بڑی بڑی بات ہے، مجھے تمہارے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پڑھائی کرنے آئی ہوں، گھر بسانے نہیں۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے جیپ سٹارٹ کر دی۔ گھر تو ایک نہ ایک دن تو بسانا ہی پڑتا ہے سب کو، تم بھی بسانا ہے تو پھر میرے ساتھ ہی کیوں نہیں؟ جیسا تم نے کہا میں نے ویسے کر ڈالا۔ زردشت تمہاری ہاتھ اتنا بدل ڈالا خود کو، مگر تمہاری بات ابھی بھی وہی ہے۔ میں نے تو بس ایک بات کہی تھی کہ خود کو بدل لو، اچھے انسان بنو، لڑکیوں کی طرح لمبے بال اور مردوں کی طرح لمبی مونچھیں رکھیں۔ آدھے مرد اور آدھی عورت بن کر زندگی گزار رہے تھے تم۔ سمیر کو جھٹکا سا لگا زردشت کی بات پر، چہرے پر پھر سے غصے کے ساتھ چھانے لگی۔ اس نے غصے سے ہاسٹل کے گیٹ کے پاس جیپ کو بریک لگائی۔ آج کے بعد یہاں سے جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہارے گھر سے واپس آؤں گا تمہیں۔ اب نکلو میری جیپ سے۔ سمیر ایک لفظ چباتے ہو گئے۔ زردشت کو شدت سے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ جا رہی ہوں میں بھی کوئی مر نہیں رہی تمہاری اس گٹھیا جیپ میں بیٹھنے کے لیے، خود ہی زبردستی بٹھایا ہے مجھے۔ سمیر نے غصے سے زردشت کی طرف دیکھا۔ میری جیپ کے بارے میں کچھ مت کہنا ورنہ۔ سمیر غصے سے زردشت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا۔ زردشت کی نظر اپنے پیروں کے پاس گری پانی کی بوتل پر پڑی۔ زردشت کو بوتل اٹھاتے دیکھ کر سمیر نے سر نفی ملایا۔ نو، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی زردشت سارا پانی سمیر کے سر پر الٹ چکی تھی۔ تم اسی لائق ہو بھگتو اب۔ زردشت غصے سے بولتی ہوئی جیپ سے نیچے اتر گئی۔ زردشت، سمیر بس اسے غصے سے پکارتا ہی رہ گیا۔ زردشت نہیں رکی۔ سمیر نے اپنے چہرے پر بکھرے بال چہرے سے پیچھے ہٹائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔ کیسی پاگل لڑکی ہے، سمیر نے مسکراتے ہوئے جیپ سٹارٹ کر دی۔ زردشت غصے سے آب گولا ہوتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ نیلم اور نازیہ اس کا بیگ کھولے سارا سامان الماری میں واپس رکھنے میں مصروف تھی۔ زردشت کو دیکھ کر دونوں نے ایسے چونکنے کی ایکٹنگ کی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ زردشت تم یہاں کیسے؟ نیلم جلدی سے آگے بڑھی۔ ہمیں لگا تم اپنا سوٹ کیس یہیں بھول کر چلی جا چکی ہو، اس لیے ہم لوگ واپس آ گئے۔ زردشت پلیز رک جاؤ، مت کرو ایسا، ہمیں اس طرح چھوڑ کے مت جاؤ۔ نازیہ زردشت کے گلے لگ کر جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ نہیں جا رہی میں، پلیز تم چپ ہو جاؤ۔ نازیہ کیا تم سوچ کے کہہ رہی ہو؟ نازیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زردشت نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس ہٹلر دی ڈان سمیر گجر کے ہوتے ہوئے میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ جینا دشوار کر رکھا ہے اس نے میرا، نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پتہ کیسے چلا کہ میں جا رہی ہوں، ہم سے پہلے ہی بس اسٹینڈ پر پہنچ چکا، کیسے پہنچ گیا؟ نیلم اور نازیہ نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ سمیر وہاں پہنچ گیا تھا؟ وہ نازیہ چونک کر بولی۔ ہم سمجھ رہی کہ تم اپنا سوٹ کیس بھول کر جا چکی ہو، مگر تم تو سمیر کے ساتھ تھی۔ کیا کہا اس نے تم سے؟ نازیہ نے اپنا حصہ ڈالا۔ کہہ رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے گئی تو میرے گھر سے واپس لے آئے گا مجھے۔ بہت تنگ کر رکھا ہے اس نے مجھے، کسی نے تنگ کر رکھا ہے۔ عافیہ کی آواز پر وہ تینوں پلٹی۔ عافیہ جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور باری باری اس سے ملنے لگی۔ ارے واہ، کیا سرپرائز دیا ہے تم نے، ایسے اچانک بنا بتائے چلی آئی، ہمیں انفارم تو کر دیتی، تمہارا اچھا سا ویلکم کرتے ہم۔ نیلم مسکراتے ہوئے بولی۔ عافیہ مسکرا دی اور اپنا انگوٹھی والا ہاتھ ان تینوں کے سامنے لہرایا۔ واو، مبارک ہو۔ تینوں مبارکباد دینے لگی۔ عافیہ کو اس کے علاوہ ایک اور بات، صرف منگنی ہی نہیں نکاح بھی ہو گیا ہے میرا۔ عافیہ بلش ہوتے ہوئے بولی۔ واو، سب ایک ساتھ ہم آواز ہو کر بولے۔ اب تو ڈبل ٹریٹ بنتی ہے بھائی، نیلم نے پرجوش ہو کر بولی۔ ہاں ضرور، عافیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو پھر ڈن، ہائی ڈنر میری طرف سے ہے۔ عافیہ نے بات ختم کی۔ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے، پہلے ہمیں پکچرز تو دکھاؤ نکاح والی۔ عافیہ ان سب کو پکچرز دکھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ چاروں تصویریں دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ دروازے کی آواز پر وہ چاروں دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ عافیہ کی تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی سمیر کے حولے کو دیکھ کر۔ سامنے سمیر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ کچھ دیر کے لیے کسی دوسرے روم میں چلی جاؤ تم سب، مجھے یہ لاک ٹھیک کروانا ہے۔ سمیر لاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ زردشت چپ کر رہ گئی مگر بولی کچھ نہیں۔ جانتی تھی ایک شخص سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کس کی نہیں سنتا، بس اپنی ہی بنواتا ہے۔ ہم ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ زردشت ایک ایک لفظ چبا کر بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، ایک غصیلی نظر دروازے کے باہر کھڑے سمیر پر ڈالی۔ بدلے میں سمیر نے اس کی طرف پیار سی مسکراہٹ اچھالی۔ زردشت پیر ٹچکتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور وہ تینوں بھی اس کے ساتھ چل دی۔ زردشت یہ سب کیا تھا؟ یہ سمیر اتنا چینج کیسے ہو گیا؟ یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ یہ کب سے تمہارے کام کرنے لگا؟ عافیہ حیرتوں میں ڈوبی سوالوں پر سوال کرتی چلی گئی۔ یہ مصیبت میرے پیچھے نہیں چھوڑنے والی۔ زردشت کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا کچھ؟
आफिया तीनों को घूरते हुए बोली, यार बताना क्या है, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। नीलम चिल्लाते हुए बोली। मतलब? आफिया ने बुनवे उछाई। मतलब ये कि हमारी प्यारी दोस्त जरतश शान की मोहब्बत में कैद हो चुका है समीर डॉन। ये सब कुछ इसने जरतश की खातिर किया है ताकि इसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। नाज़िया के जवाब पर आफिया हैरान सी जरदश को देखने लगी। जरदश, क्या वाकई इसने तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं? इससे पहले कि आफिया मजीद बोलती जरदश ने इसे टोक, ये सब वो अपने लिए कर रहा है और हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। इसे जितना कुछ मैंने सुनाया है ये तो होना ही था ना। फिर इसी की मर्दगानी पर सवाल जो उठाया था। है तुम लोग छोड़ो ये सब, इग्नोर करो इसे, जो करता है करने दो। जरदश लापरवाही से बोलते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गई। और ये लाख वाला क्या सीन है, तुम लोग ही बता दो यार। जरदश तो बताने से रही। आफी बेजार होते हुए बोली, दरवाजे वाला सीन शुरू से बताती हूँ। नाजिया कुछ सोचते हुए बोली, असल आज छुट्टी से पहले जरदश लाइब्रेरी गई। ये हम दोनों कैंटीन में इसका इंतजार कर रही थी कि अचानक कह लो या फिर जानबूझकर समीर भी लाइब्रेरी पहुंच गया। जरदश का कहना है कि समीर ने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, बस इसीलिए वहां से अकेली हॉस्टल आ गई। इसका फोन भी बंद था। जब काफी देर इंतजार करने पर भी जरदश नहीं आई तो हम दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। जरदश खुद को कमरे में बंद किए बैठी थी। हम दोनों बहुत देर तक दरवाजा बजाती रही मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक समीर वहां आ गया और इसने दरवाजे का लॉक तोड़ डाला और मेरा फोन भी। नाज़िया ने अपना टूटा हुआ फोन बैग से निकाल कर आफिया के सामने रख दिया। ओह, ये समीर कभी नहीं सुधरने वाला। आफिया अफसोस करते हुए बोली, ना ना ऐसे मत बोलो। नीलम ने सटोर कहा, आज अगर समीर इसे अपने घर वापस जाने से ना रोकता था तो अभी जरदश हमारे साथ ना होती। मतलब? आफिया नासमझी से बोली, मतलब ये कि जरदश डर के अपने घर वापस जाने वाली थी मगर हमने समीर को बता दिया और वो हमसे पहले ही बस अड्डे पर पहुंच गया। जरदश को अपनी जेब में वापस छोड़ गया हॉस्टल। वाह, आखिर ये समीर है क्या? मेरी तो समझ से बाहर है। आफिया सर थामते हुए बोली, तुम लोगों को क्या लगता है वो वाकई जरदश से मोहब्बत करता है? पता नहीं। नीलम ने कंधे उछाले, मगर वो जरदश को वापस ले आया। आखिर क्यों? ये बात मुझे हमें भी परेशान कर रही है। बस मेरा एक मैसेज पर वो बस अड्डे पर पहुंच गया। चाहता तो जाने देता जरदश को। इस समीर नामी बंदे को समझना नामुमकिन है। उफ, जब मैं गई थी तुम भी समीर समीर समीर, वापस आई हो तो अभी समीर समीर समीर। जहर बेस है। कोई और बात ही कर लो यार। क्या हुआ, बोर क्यों हो रही हो? जरदश आर्डर देकर वापस आ गई मुस्कुराते हुए। जरदश, इससे पहले कि आफिया कुछ बोलती, जरदश का नाम किसी ने पुकारा, वो भी बहुत गुस्से से। जरदश ने पलट कर देखा, सामने बासत खड़ा था। बहुत गुस्से से। जी बासत लाला, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जरदश, मुझे बस एक बात का जवाब दो, क्या समीर ने आई तुम्हारे साथ बदतमीजी की लाइब्रेरी में? जरदश के हाथ पैर फूल गए बासत की बात पर। वो पर घबरा कर तीनों की तरफ देखने लगी। जरदश, जवाब दो मुझे। बासत गुस्से से दारा। जी जरदश, बस इतना ही बोलकर सर झुकागी। इसकी इतनी हिम्मत, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बासत गुस्से से वहां से चल पड़ा। जरदश भी इसके पीछे दौड़ी। ओ शिट, ये अच्छा नहीं हुआ। वो तीनों भी जरदश के पीछे दौड़ी। नहीं बासत लाला, रुक जाएं। वो अपनी गलती के लिए माफी मांग चुका है, आइंदा से कुछ नहीं करेगा, वो वादा किया है इसने। आप प्लीज रुक जाएं। जरदश इसके साथ साथ चलती बोल रही थी मगर बासत ने इसकी एक नहीं सुनी। बॉयज हॉस्टल पहुंचकर बासत समीर के कमरे की तरफ बढ़ा। जरदश वहीं गेट पर रोककर गार्ड से अंदर जाने की इजाजत मांगने लगी। गार्ड किसी सूरत भी इन सबको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो चारों बेबसी से वहीं गेट के बाहर बासत के आने का इंतजार करने लगी। बासत समीर की कमरे तक गया तो इससे कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। बासत ने गुस्से से दरवाजे पर एक टांग रसीद की। शोर की आवाज पर इर्द गिर्द के कमरों से लड़के बाहर आने लगे। क्या हाँ गया है ये? बासत सामने वाले कमरे से जागते हुए लड़कियों को देखते हुए, समीर भाई तो इस वक्त जिम जाते हैं। इस लड़के ने मुख्तसर जवाब दिया, कौन सी जिम? एड्रेस दो मुझे। बासत फिर से गुस्से से बोला, हॉस्टल के पिछली गली में जो जिम है वहाँ। वो लड़का बस इतना बोलकर अपने कमरे में घुस गया। बासत गुस्से से वहाँ से चल पड़ा। जरदश ने इसे वापस आते देखा तो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी। बासत लाला, आप छोड़ दें इस बात को, खुदा का वास्ता है। जरदश इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, जरदश तो मुझे खुदा का वास्ता मत दो, आज मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बदतमीजियां दिन बढ़ती जा रही है, इसे लगाम डालनी होगी। ये क्या तुम्हें लवारस समझते हैं? तुम डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब मुझ पर छोड़ दो। तुम हॉस्टल वापस जाओ, मैं इसको जिम में ही देख लूंगा। बासत गुस्से से बोलते हुए वहां से चल पड़ा। वो चारों बासत के पीछे पीछे दौड़ी। बासत लाला रुक जाए प्लीज, जरदश बोल रही थी मगर बासत सुनने के मूड में ही नहीं था। वो गुस्से से जिम का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। चारों भी इसके साथ ही जिम में दाखिल हुई। काउंटर पर बैठा जिम का मालिक परेशानी से इनकी तरफ देख रहा। समीर कहाँ है? बासत दोनों हाथ काउंटर पर रखते हुए बोला, वो वहाँ
اس نے دور کھڑے سمیر کی طرف اشارے کیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ باسط اسی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ سمیر مسکراتے ہوئے فیصل اور نوید سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی نظر آتے سے باسط پر، اس کے ساتھ آتی زرتش اور باقی سب پر پڑی۔ سمیر نے حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ باسط تیزی سے سمیر کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ سمیر کی گردن پر رکھتے ہوئے اسے دھکا دیتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ سمیر اچانک ہونے والے حملے پر کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ جب گردن پر دباؤ محسوس ہوا تو دونوں ہاتھ باسط کی گردن پر رکھ دیے۔ سمیر کی گردن پر باسط کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ سمیر چھوڑ دو انہیں، زرتش تیزی سے آگے بڑھی۔ سمیر غصے سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اگر تم کہتی ہو چھوڑ دیتا ہوں۔ سمیر نے باسط کو چھوڑا تو کھانستے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے بال تھامتے ہوئے چہرہ اوپر کیا۔ ابھی بچے ہو تم بیٹا، اس طرح کے کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرنا، آئندہ چوٹ لگ جائے گی سمجھے؟ یہ پارٹی میں نے تم جیسوں سے نپٹنے کے لیے ہی بنائی ہے۔ سمیر اپنے ابھرتے بازوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت کالا ٹراؤزر اور کالی بنیان پہنے کھڑا تھا۔ باسط جیسے ہی تھوڑا سا سنبھلا، اس نے پھر سے سمیر پر حملہ کرنے دیا۔ اب کی بار اس نے سمیر کے پیٹ پر مکر رسید کیا اور فیصل اور نوید تیزی سے آگے بڑھے۔ سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اٹس اوکے، بچے کو میں دیکھ لوں گا، کم آن لیٹس فائٹ۔ سمیر نے اسے پھر سے للکارا۔ باسط پھر سے آگے بڑھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی زرتش کو ہاتھ لگانے کی؟ باسط نے پھر سے ایک موزہ سمیر کے پیٹ میں مارا۔ باسط لالا بس کر دیں، چلیں یہاں سے۔ زرتش ان دونوں کے درمیان نہ رکی۔ سمیر مسکرا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، بہن کا بدلہ لینے آئے ہو؟ سمیر اب ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب لوگ اپنی ورزش چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ دیکھو بیٹا، بہنوئی ہوں تمہارا میں، یہ مار پیٹ مہنگی پڑ سکتی ہے تمہیں، سمیر آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ باسط مزید تب گیا۔ زرتش کو پیچھے کرتے ہوئے پھر سے سمیر کی طرف بڑھا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر اب تم نے زرتش کے بارے میں ایک لفظ ہی بولا۔ باسط نے سمیر کی طرف ہاتھ اٹھا ہی دیا تھا کہ سمیر نے اس کا ہاتھ روک لیا اور سر نفی میں لایا۔ نہ بیٹا، اب اور نہیں، میں کروں گا زرتش کی بات، کیا کر لو گے تم؟ سمیر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ باسط غصے سے دھارا۔ وجہ آخر مسئلہ ہی کیا ہے تمہیں ہم دونوں سے؟ زرتش میری ہونے والی بیوی ہے، عزت ہے میری۔ باسط غصے سے دھارا۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے زرتش کی طرف دیکھا۔ اب کیا کہو گی تم؟ سارا دن جس کو باسط لالا پکارتی نہیں تھکتی تم، وہ تو دل میں تم سے شادی کے ارمان لیے پھرتا ہے۔ واو، کیا ہی بات ہے۔ سمیر کے الفاظ زرتش کو کانٹوں کی طرح چبھے۔ وہ غصے سے باسط کی طرف بڑھی۔ باسط لالا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں زرتش، تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ زرتش غصے سے وہاں سے پلٹی۔ بس کر دیں آپ دونوں، میری عزت کا مزید تماشا مت بنائیں۔ زرتش ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سمیر دونوں بازو سینے پہ فولڈ کیے لب لیجے زرتش کو دیکھنے لگا۔ آج اس بات کو یہیں ختم کر دیں اور میری زندگی میں دخل اندازی بند کر دیں آپ دونوں، چلو یہاں سے۔ زرتش ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ رکو زرتش، سمیر کی آواز پر زرتش پلٹی۔ آج یہ معاملہ یہیں ختم ہوگا۔ سمیر زرتش سے بولتے ہوئے واپس فیصل اور نوید کی طرف پلٹا۔ وہ دونوں جم سے باہر نکلنے گئے۔ کیا کرنے چاہتے ہو اب تم؟ زرتش سمیر کی طرف بڑھی۔ بہت جلدی پتہ چل جائے گا تمہیں، بس 5 منٹ انتظار کر لو، سمیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آئے، مگر اکیلے نہیں، ان کے ساتھ نکاح ہوا بھی تھا۔ دروازہ بند کر دو سارے اور گارڈز کو اندر بلوا لو۔ سمیر کی بات پر زرتش نے حیرانگی سے سمیر کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ غصے سے چہلائی۔ سمیر نے بس مسکرانے پر اتفاق کیا۔ باسط بھی غصے سے آگ میں گولا ہو رہا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ پریشان مت کرو بیٹا، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھوانے لگا، نکاح پڑھوانے لگا ہوں زرتش شان کے ساتھ۔ سمیر کی بات پر سب کے چہروں پر حیرانگی چھا گئی۔ زرتش کو لگا جیسے وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سمیر؟ زرتش غصے سے سمیر کی طرف بڑھی۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ بند کرو یہ سب ابھی، جانے دو ہم سب کو یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ زرتش غصے سے سمیر کو دمکانے والے انداز میں بولے۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ سمیر سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور ساتھ ہی کہک لگایا۔ زرتش نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باسط کی طرف بڑھا۔ او بھائی بیٹا، سائن کرو نکاح نامے پر، مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ کیا بکواس ہے یہ سب سمیر؟ باسط نے غصے سے چہلایا۔ مذاق نہیں سمجھ رکھا ہے کیا؟ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارا غلام ہوں جو تمہاری بات پر مان لوں گا۔ بند کرو یہ ڈرامہ، چلو زرتش یہاں سے۔ باسط تیزی سے زرتش کی طرف بڑھا۔ سمیر سینے پر دونوں بازو فولڈ کیے مسکراتے ہوئے ان سب کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ دونوں دروازے کے پاس پہنچے،
सामने खड़े गार्ड्स ने बंदूकों का रुख इनकी जानब मोड़ दिया, जिसका मतलब था कि यहाँ से निकलना मुश्किल है अब। जाने दो हमें, बासत गुस्से से गार्ड्स पर चलाया। जब तक बॉस का ऑर्डर नहीं मिलता आप यहाँ से नहीं जा सकते। गार्ड्स के जवाब पर बासत गुस्से से समीर की तरफ पलटा। इनसे कहो हमें यहाँ से जाने दें। समीर मुस्कुराते हुए इनकी तरफ बढ़ा। शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है, तुम्हारा निकाह होगा, वो भी अभी जरतश खान से। समीर ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। चलो अब। समीर बासत को बाजू से खींचते हुए कुर्सी तक ले आया। बैठो यहाँ, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। समीर के कहने में मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। समीर बंद करो ये सब, मैं ये निकाह नहीं करूंगा। बासत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्यों क्यों नहीं करोगे तुम? जरदश्त निकाह, शादी होने वाली है तुम दोनों की, तो निकाह आज ही सही, कल करो सो आज, आज करो सो अब। ये कहावत सुनी ही होगी तुमने, कल भी निकाह इसी से करने हैं तो आज क्यों नहीं? अब चुप क्यों हो बासत खान? जवाब दो। समीर सवाल पर सवाल करता चला गया। मैं नहीं कर सकता ये निकाह, मुझे जाने दो यहाँ से। ये तुम्हारा और जरदश्त का मामला है, तुम दोनों जानो। आज के बाद मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज, जाने दो यहाँ से। बासत का सारा गुस्सा अब हवा बन चुका था। अब आए ना अपनी असली औकात पर, बस यही था तुम्हारी मर्दानगी। वैसे तो तुम कहते फिरते हो जरदश्त मेरी होने वाली बीवी है, और जब बात निकाह की आई तो निकल चले पतली गली से। वाह मिस्टर बासत खान वाह! समीर ने ताली बजाते हुए इसे दाद दी। जरदश्त गुस्से से बासत की तरफ बढ़ी। बासत लाला ये सब क्या है? कुछ नहीं, नहीं डर गया है बच्चा, तुम फिक्र मत करो जरदश्त, आज ही निकाह होगा तुम्हारा। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। समीर ने जरदश्त का बाजू थामते हुए कुर्सी पर बैठा दिया। समीर वल्द मोहम्मद मुनीब सिका राजल वक्त हक मेहर 50,000 जरदश्त शान वल्द मोहम्मद ज़हीर सारे गवाहों के मातहत, क्या आपको ये निकाह कबूल है? समीर का नाम सुनकर जरदश्त की फौरन तले जैसे ज़मीन सरक गई। जरदश्त ने पलट कर समीर की तरफ देखा। समीर मुस्कुरा दिया। वो दोनों हाथ जरदश्त की कुर्सी पर जमाए खड़ा था। कबूल है। समीर चेहरे पर मुस्कुर सजाए बोला। मौलवी साहब के ये अल्फाज मजीद दो मरतबा दोहराने पर भी समीर ने यही जवाब दिया और आगे बढ़कर निकाहनामे पर साइन कर दिए। जरदश्त खान वल्द मोहम्मद ज़हीर खान सिका राजलवात हक मेहर 50,000 और इन सारे गवाहों के मातहत समीर वल्द मोहम्मद मुनीब से, क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं। जरदश्त ने ज़फ़ी में सर हिलाया। समीर जरदश्त के कान के पास झुका। अगर अपनी दोस्तों की जान प्यारी है तो निकाह कबूल कर लो, वरना जो होगा इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। समीर की बात पर जरदश्त चूम कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। इसकी नज़र दरवाजे की तरफ बढ़ी तो दंग रह की। दोनों गार्ड्स इसकी तरफ बंदूक ताने हुए थे। समीर छोड़ दो इन सब को, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, छोड़ दो गा, पहले तुम ये निकाह कबूल करो। तुम एक घटिया इंसान हो समीर। जरदश्त गुस्से और बेबसी से बोली। जानता हूँ, मगर जैसा भी हूँ तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। बदले में समीर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। जरदश्त ने एक हकारत भरी नज़र चुपचाप खड़े बासत पर डाली। बासत नजरें फैल गया, जैसे कहना चाह रहा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरदश्त ने निकाह मत करना, हमारी फिक्र मत करो समीर, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, ये बस हमें डरा रहा है और कुछ नहीं है। हमारी यही कमज़ोरी है कि हम डर जाती हैं और इससे, और ये हर बार हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। नीलम चहलाकर बोल रही थी। जरदश्त ने एक बार फिर से बेबसी से समीर की तरफ देखा। समीर मुस्कुराते हुए उन तीनों की तरफ पलटा, अपनी जेब से पिस्टल निकाली और नीलम के पाँव के बिल्कुल करीब गोली चला दी। निशाना तुम्हारे पैर पर भी लग सकता था, अगर तुम तीनों में से किसी ने भी जबान खोली तो अंजाम की जिम्मेदार हो दोगी। मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। माई डेट मिस्टर वेस्टल जेब में रखते हुए जरदश्त की तरफ बढ़ा। इन तीनों पर तो जैसे खौफ तारी हो गया था। जरदश्त अपनी डरी सहमी दोस्तों को देखकर खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगी। समीर ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जरदश्त के पास अब इस निकाह को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस निकाह का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। जरदश्त को मुस्तकबिल दिखाई देने लगा। अभी समीर इसके भाइयों को जानता ही नहीं, जब इनको इस निकाह की खबर मिलेगी तो पता नहीं क्या क़यामत गुजरेगी। जरदश्त बेबसी से दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मौलवी साहब ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए। जरदश्त ने ज़बत से आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ कबूल है। 3 बार कबूल करने के बाद जरदश्त ने गाल पर बहते आंसू साफ करते हुए निकाहनामे पर साइन कर दिए। निकाह होते ही हर तरफ मुबारकबाद वसूल होने लगी। बासत खामोशी तमाशा बने खड़े सब देख रहा था। फैसल और नवीद मौलवी साहब को वापस छोड़ने चले गए। समीर के कहने पर जिम के दरवाजे खोल दिए गए। वो तीनों बेबसी से आंसू बहाती जरदश्त के पास आ रुकी। वो तीनों भी रो रही थी और जरदश्त को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। अपनी बीवी के आंसू पूंछने के लिए मैं जिंदा हूँ अभी, तुम तीनों रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से अभी के अभी।
समीर की आवाज़ पर वो तीनों बेबसी से बाहर की तरफ बढ़ गई। जरतश भी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। समीर ने इसका हाथ थाम लिया और वापस कुर्सी पर बिठा दिया। सारी जिम खाली हो चुकी थी। गोली चलने की वजह से सब खौफजदा होते हुए बाहर निकल गए। समीर और जरतश आमने सामने रखी कुर्सी पर बैठे थे। इसका क्या करना है समीर? फैसल गुमसुम से खड़े बासत की तरफ इशारा करते हुए बोला। समीर ने बासत को आवाज दी, इधर आओ। बासत भारी कदमों के साथ वहां आ रुका। मुबारकबाद नहीं दोगे? समीर की बात पर बासत ने चूम कर इसकी तरफ देखा, फिर लापरवाही से समीर को मुबारकबाद दी। नहीं, मुझे नहीं, अपनी बहन को तो मुबारकबाद। समीर को टोकने पर बासत जरतश की तरफ पलटा। निकाह मुबारक। और जरतश ये मुश्किल हिम्मत करते हुए बोला। जरतश तेजी से उठी और जोरदार थप्पड़ बासत के चेहरे पर लगा दिया। फैसल और नवीद हंस हंस कर लूट-फूट होने लगे, जैसा जबकि समीर ज़ेर लब बिचे बासत को देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है जरतश? बासत तकरीबन चिल्लाया, आवाज नीचे। समीर चिल्लाने के अंदाज में बोला, आइंदा मेरी बीवी के साथ ऐसी बात करने की जरूरत मत करना। दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना, वरना बोलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। बासत एक नजर समीर के साथ खड़ी जरतश को डालते हुए जिम से बाहर निकल गया और जरतश भी आंसू पूछते हुए बाहर की तरफ चल दी। समीर इसके रास्ते में ही आगे। नहीं नहीं, अपनी बीवी को मैं खुद छोड़ने जाऊंगा, इज्जत के साथ। समीर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला, जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात मानी जाए। रास्ते से हटो समीर। जरतश खूनख्वार नजरों से समीर को घूरने लगती हुई बोली, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। गुलाम नहीं हो, बीवी तो हो। मेरी हर बात मानना अब फर्ज है तुम पर। प्यार से मानोगी तो ठीक, वरना मेरी आदतों से तो वाकिफ ही हो, है ना मिसेस? जबरदस्ती के शोहर हो तुम। मैंने तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया, बस मजबूरी थी मेरी। ज्यादा शोहरों वाले रूप दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल से कबूल होने वाले और जबरदस्ती शोहर बनने में जमीन व आसमान का फर्क होता है ना मिस्टर समीर? जरदश की बातों पर समीर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा दिया। हाँ, जानता हूँ सब जबरदस्ती का हिस्से ही, मगर जैसा भी हूँ अब तुम्हारा शोहर हूँ। मेरी इज्जत किया करो। अब समीर से हुक्माना अंदाज में बोला हूँ। इज्जत इज्जत की बात तुम मत किया करो, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। इज्जत करवाने वालों के दिलों में मुकाम बनाना पड़ते हैं, जबरदस्ती रिश्ते नहीं। वो गुस्से से समीर को रास्ते से हटाते हुए जिम से बाहर निकल गई। समीर के इशारे करने पर फैसल और नवीद दोनों रिश्ते जरतश के पीछे चल दिए। जब जरतश हॉस्टल का गेट पार कर गई तो दोनों वापस जिम चले गए। समीर का क्या था ये सब कुछ? फैसल ने गुस्से से बोलते हुए, ये प्लेन तो नहीं था। तो तुमने कहा था इसे पेपर पर बासित का नाम लिखा है, जबकि इस पर तुम्हारा नाम था। तुम अपने निकाह की तैयारी में थे, हमें तो बस बासित को डराना था ताकि आइंदा वो तुम्हारे और जरतश के रास्ते में रुकावट ना बन सके, मगर तुमने निकाह ही कर लिया। वाह, क्या प्लानिंग थी समीर डॉन। समीर, जो तुमने किया है बिल्कुल गलत है यार। नवीद भी बोल पड़ा, एक लड़की के लिए इसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मजाक मजाक में तुम सीरियस हो गए और निकाह कर लिया। निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं यार। अब जरतश तुम्हारी बीवी बन चुकी है, क्या करोगे अब तुम? बदला पूरा हुआ। इससे अब से मैं किसी जरतश खान को नहीं जानता और ना ही आज के बाद तुम दोनों से कोई इस बात का जिक्र करेगा मेरे सामने। माइंड एट। समीर ने गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ा। समीर, ये कैसा बदला था यार? बदले की आग में निकाह कौन करते हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचे इस बारे में। नवीद ने फिर से इसे समझाना चाहा। आई डोंट नॉट केयर। समीर पलट कर गुस्से से बोला और वहां से चला गया। फैसल और नवीद इसे जाते हुए देखकर वहां से चल दिए। जरतश जैसे ही अपने कमरे में पहुंची वो तीनों इसी के इंतजार में बैठी थी। जरतश को आते देखकर तीनों इसकी तरफ बढ़ी। जरतश, वी आर सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। प्लीज हो सके तो हम सबको माफ कर देना। कैसी बातें कर रही हो तुम सब? जो भी हुआ इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। शायद मेरी किस्मत में यही शख्स लिखा है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मगर जरतश, अब क्या होगा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चला तो वो तुम्हें और समीर दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर बासित ने इन सबको कुछ बता दिया तो? जरतश गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती मेरी जिंदगी का क्या क्या फैसला होने वाला है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने सारे रिश्ते खोने वाली हूँ। इस एक जबरदस्ती की रिश्ते की वजह से भाइयों के लिए मर जाऊंगी मैं, या फिर वो मुझे खुद ही मार देंगे। हर हाल में मरना ही लिखा है मेरे नसीब में। तो अब डरना कैसा? मैं हर तरह के हालात सहने के लिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यार जाओ तुम लोग, खाना यहीं ले आओ, मैं जरतश के पास ही हूँ। आफिया के कहने पर नीलम और नाजिया बाहर की तरफ चल दी। जरतश, सब ठीक हो जाएगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सब बताएंगे तुम्हारे घर वालों को, फिक्र मत करो। हम इस जिम की फुटेजेस निकलवाएंगे पुलिस की मदद से। आफिया से दिलासा दे रही थी। जरतश पर अब किसी दिलासे का असर नहीं पड़ने वाला था। वो जानती थी समीर कोई सबूत नहीं छोड़ने वाला। वो तीनों खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चली गई। जरतश को भी जबरदस्ती खाना खिला दिया इन्होंने, वरना जरतश तो रोने से ही फुर्सत नहीं थी। अगली सुबह वो तीनों यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर निकली।
तो जरतश अभी तक सो रही थी। आफिर ने आगे बढ़कर दरवाजा नॉक किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। नीलम ने हैंडल पर हाथ रखा तो हैंडल घूम गया और दरवाजा खुलता चला गया। तीनों ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा और कमरे में दाखिल होगी। ना तो जरतश कमरे में थी, ना ही इसका सामान। दरवाजे की बैक साइड पर एक पेपर चिपका हुआ था। वो तीनों तेजी से इस पेपर की तरफ बढ़ी। घर जा रही हूँ, मेरा नंबर कुछ दिनों तक बंद रहेगा, सॉरी फ्रेंड्स। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, क्या पता कब घर वालों तक इस निकाह की खबर पहुँच जाए और मुझसे ताल्लुक तोड़ दें। इससे पहले मैं अपनों के साथ रहकर इनकी मोहब्बतें बटोरना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना। तुम लोग और मेरे घर आने का तो सोचना भी मत। मैं नहीं चाहती कि घर वालों को मेरी अचानक वापस आने पर शक हो। तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो और अपना ख्याल रखना तुम सब। मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर समीर मेरे बारे में सोचे तो संभाल लेना तुम लोग। इसे मेरा नंबर बिल्कुल मत देना और बहुत जल्द मैं खुद तुम सब से रब्ता करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ज़रतशान आहर में इसने अपना नाम लिखा हुआ था। तीनों ने अफसोस से एक दूसरे की तरफ देखा। इस समीर को तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नीलम गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। नाजी और आफिया भी इसके पीछे चल दी। छोड़ो यार, जरतश को संभालने में वक्त लगेगा। हमें समीर से पंगा नहीं लेना चाहिए। नाजी की बात पर आफिया और नीलम ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। तुम समीर की साइड ले रही हो? नहीं, नीलम ने गुस्से से चलाई। नहीं नहीं, मैं समीर की साइड नहीं ले रही है। मैं तो कह रही हूँ कोई फायदा नहीं इससे बात करने का, बल्कि इसका नुकसान ही होगा हमें। जब हम इसे जरतश के घर जाने का पता चलेगा तो वो हमसे इसका नंबर मांगेगा। नंबर बंद होगा तो वो जरतश के घर का पता मांगेगा। अगर इसे एड्रेस मिल गया तो वो जरतश के घर पहुंच जाएगा। मतलब जरतश के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब तुम दोनों ही बताओ कि मैं गलत बोल रही हूँ। अभी तो जरतश के पुराने जख्म नहीं भरे और नए जख्मों का सामान हम तैयार करने वाली हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मगर अब कब तक चलेगा? आखिर जरतश को वापस तो लाना ही होगा। आफिया और नीलम इसकी बात से मुत्तफिक हो चुकी थी। इसे कुछ वक्त चाहिए, वो दुखी है अभी। मुझे यकीन है जल्द वापस आ जाएगी वो। ठीक है, नहीं करती मैं बात समीर से। चलो अब जल्दी देर हो रही है। अब तीनों यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गई। इनको पूरा दिन समीर यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आया। तीनों ने खुदा को शुक्र अदा किया। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया, मगर समीर यूनिवर्सिटी नहीं आया। अब वो तीनों हैरान भी थी और परेशान भी। जरतश से भी रब्ता नहीं हो पाता था। इनका और समीर का भी कोई पता नहीं चल रहा था। फैसल और नवीद भी गायब थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर जरतश से निकाह करके इसे हमेशा के लिए छोड़ गया हो, या फिर इसने किडनैप तो नहीं कर लिया जरतश को। वो तीनों अपनी ही अंदाज लगाई बैठी थी, मगर हकीकत से सब अनजान थी। जरतश कमरे की लाइट बंद करते हुए खिड़की के पर्दे सुलगाती हुई नीचे सहन में देख रही थी। अभी वो इशा की नमाज अदा करके आई थी। सहन में लगे बल्ब से हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। तभी अचानक जरतश की नज़र गेट से अंदर आते शख्स पर पड़ी। जरतश को अपना सर चकराता हुआ महसूस किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समीर, तुम यहाँ नहीं आ सकते। वो मुंह पर हाथ रखते हुए समीर को देख रही थी। इसी पल समीर ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा और इस वक्त काली शलवार कमीज पहने हुए था। चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए वो जरतश को ही देख रहा था। जरतश ने नफी में सर हिलाया, जैसे कहना चाह रही हो आगे मत बढ़ना समीर, वापस चले जाओ। मगर समीर इसे नज़रअंदाज करते हुए सहन में आ रुका। जरतश नीचे आओ भी। समीर की आवाज़ पर जरतश को अपने पाँव तले ज़मीन से रखती हुई महसूस हुई। इसमें तो जैसे चहलने के तक की हिम्मत न रही। जरतश, सुना ही नहीं तुमने? मैंने कहा नीचे आओ। समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। नहीं, जरतश ने सर नफी में लाया। समीर गुस्से से आगे बढ़ा, मगर बशीर लाला से टकर गया। जरतश जैसे होश की दुनिया में वापस लौटी। नहीं, ऐसा ये अच्छा नहीं हुआ। वज़ीर लब कोली, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बयान का नाम अपनी ज़ुबान पर लाने की? बशीर लाला गुस्से से चहलाए। इतनी देर में हिजर लाला भी वहाँ पहुँचे। कौन है ये? वो भी गुस्से से चलाए। पता नहीं कौन है ये लाला, अभी कुछ बोल नहीं रहे तुम? बशीर लाला गुस्से से मेरी तरफ बढ़े। दोनों भाभी भी वहाँ पहुँची। ये ठीक नहीं हो रहा। जरतश गाल पर बहते आंसू पूछते हुए नीचे की तरफ भागी। इससे अकेले पे बशीर समीर की गिरबान पर पहुंचा। समीर ने इनके हाथ थाम लिए और से दूर देखा दिया। वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरा। हिजर जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा और बंदूक उठाते हुए बाहर आ गया। इनके हाथ बंदूक देखकर इनकी बीवी जल्दी से आगे बढ़ी। रुक जाए हाँ साहब, पहले पूछ तो लें इससे आखिर ये यहाँ आया क्यों है? मैं यहाँ अपनी बीवी जरतश के लेने आया हूँ। बीवी जरतश तुम्हारी बीवी कब बनी? क्या बकवास है ये? भाभी भी गुस्से से चहलाई। बीवी का नाम सुनकर जरतश के कदम आखिरी सीढ़ी पर ही जम गए, थम गए। नहीं, जरतश ने नफी में सर हिलाया। सब ने पलट कर जरतश की तरफ देखा।
क्या कह रहा है ये लड़का? ज़रतुश, क्या तुम जानती हो इसे? बशीर गुस्सैली नजरों से समीर पर गाड़ते हुए बोला, ये सच है लाला। ज़रतुश जवाब पर सब के चेहरे पर हवाएं उड़ गई। क्या कहा तुमने? छोटी भाभी गुस्से से ज़रतुश की तरफ बढ़ी। इसलिए भेजा था तुझे हॉस्टल, ये रंग लगनियाँ मनाती फिर रही थी। यूँ यूनिवर्सिटी इसलिए जाना चाहती थी तू पढ़ने यहाँ? मुंह काला करवा आई अपना और अपने आशिक को घर तक बुला लिया। कम्बख्त, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने हमारी। वो गुस्से से ज़रतुश पर टूट पड़ी। इससे पहले एक बार ज़रतुश पर हाथ उठाए समीर बिजली की सी रफ्तार से ज़रतुश के सामने आ रुका। इसमें ज़रतुश की कोई गलती नहीं। मैंने ज़बरदस्ती ये निकाह करवाया है इससे। और खबरदार, जो मेरी बीवी पर हाथ उठाने का सोचा भी किसी ने, वो हाथ काट दूंगा। जो मेरी बीवी की तरफ बढ़ेगा, मैं अपनी बीवी को लेने आई हूँ। अगर आप लोगों का ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो मैं जाऊँ? समीर के सवाल पर हिजर ने बंदूक का रुख समीर की तरफ कर दिया। तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और यहाँ से जाने की बात कर रहे हो? भूल जा के अब तू यहाँ से जिंदा वापस जा सकेगा। हमारे साथ तुम्हारी बीवी की भी लाश यहीं दफन कर दूंगा। हिजर ने गोली चला दी, मगर गोली ना तो समीर को लगी और ना ही ज़रतुश को। समीर नीचे झुक गया और अपने साथ ज़रतुश को भी नीचे खींच लिया। वो दोनों फर्श पर गिर गए। इससे पहले कि दूसरी गोली चलती, समीर ने गोली चला दी जो सीधी हिजर के सीने में लगी और वहीं ज़मीन बोस हो गया। लाला, ज़रतुश तेजी से भाई की तरफ बढ़ी, मगर भाभी ने इसे पीछे धकेल दिया। भाभी को संभालने के बजाय बशीर बंदूक संभाली और समीर पर गोली चला दी। समीर पर बाजू पर गोली लगी और वो भी वहीं गिर गया। समीर को नीचे गिरता देखकर ज़रतुश तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। समीर, ये सब क्या हो गया? समीर का निशाना अब ज़रतुश पर था। बशीर का निशाना अब ज़रतुश पर था, जो समीर सर गोद में रखे हुए आंसू बहा रही थी। समीर की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। समीर ने बहुत हिम्मत करते हुए जेब से पिस्टल निकाली और गोली चला दी। गोली बशीर के हाथ पर जा लगी और इसके हाथ से बंदूक दूर जा गिरी। बशीर के हाथ से बेतहून देखकर इसकी बीवी इसकी तरह बढ़ी। हिजर की हालत खराब होती देखकर भाभी जोर जोर से चिल्ला रही थी और ज़रतुश को बुरा भला बोल रही थी। समीर ज़रतुश का हाथ थामे मुस्कुरा दिया और ज़रतुश का हाथ समीर के खून से भर चुका था। वो रो रही थी, नहीं समीर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। समीर दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। मोहल्ले वाले जमा हो चुके थे और ज़रतुश को समीर के साथ देखकर जहर भरी बातें कर रहे थे। ज़रतुश ने अपने गिर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। हर तरफ ज़रतुश ने जान से प्यारे भाई मुसल्लत पर पड़े थे और दूसरी तरफ इसका शोर इसकी नज़रों के सामने तड़प रहा था। वो शोर जिससे बशुदी नफर करती थी, मगर आज इसे इस हाल में देखकर वो तड़प उठी। देखते ही देखते समीर का सांस उखड़ने लगा और इसकी आंखें बंद हो गई। ज़रतुश चिल्लाने लगी, नहीं समीर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। समीर उठो और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर यहाँ इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था।